السلام علیکم، میں نیوز باسکٹ 24 سے سلام غضنفر۔ ابھی میں ابو الفضل کے ملی ماڈل اسکول کے کیمپس میں ہوں اور یہاں ایس ڈی پی آئی کے بینر تلے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس پہ یہاں کے دانشوران اور یہاں کے سیاسی لوگ بھی موجود تھے، جن میں عام آدمی پارٹی کے موجودہ ایم ایل اے امانت اللہ خان بھی یہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہاں پر جس طرح سے اپنے موقف کو رکھا ہے، یہاں جو موجودہ حالات ہیں ہندوستان کے، اس پر مبنی ایس ڈی پی آئی کی یہ ایس ڈی پی آئی کا یہ سیمینار، جن میں کئی دانشوران بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کئی شخصیت اس علاقے کی آئی ہے، سارے لوگ یہاں ہمارے بھائی بہن اس پر تمام لوگ موجود ہیں، تو ملک کے حالات پر ڈسکشن چل رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ڈسکشن ہونا چاہیے۔ یہ گلی گلی اکیلا یہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہاں اس کو کریں اور اس کے بعد میں آپ کا ودھایک بھی اور اس وقت جو ہے حالات جو ہے نا یہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر ہی عمل نہ کریں۔ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کو پانی دینا بند کر دیں، بجلی دینا بند کر دیں، سڑک دینا بند کر دیں، یہ بالکل خطرے کا یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب پر چلنا بند کر دیں۔ تین چیزیں ہیں جس میں یہ کامیاب ہو پورے ملک کا۔ تو اگر آپ سینیریو دیکھو گے، وقف کو چاہے سی این آر سی ہو، چاہے ابھی پرائیویٹ بل لے کر آ رہے ہیں وہ ہو، یہ پورے ملک میں انہوں نے جب سے آئے ہیں ایک چیز کوشش کی ہے پورے ملک کو بتانے میں اور نفرت کو بڑھانے میں کہ ہندو بھائی ہو، تمہیں اگر کسی سے خطرہ ہے مسلمان ہو سکتا ہے، اگر تمہاری عزت، آبرو، تمہارا مال، حکومت اگر کوئی چھینے گا تم سے تو مسلمان چھینے گے۔ یہ بات ملک کے زیادہ تر ہندو بھائیوں کو بتانے میں کامیاب۔ اب ہم ان کا علاج کر رہے ہیں تو ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ساتھ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی کہ اگر تمہارے دشمن کا کوئی دوست ہے تو وہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ اسی پر پوری سیاست وہ اسی کے لیے ساری چیزیں وقف ہے۔ جس طرح سے لے کر آئے بہت سارے لوگ اس کے سپورٹ میں بیانات بھی دے رہے ہیں کہ اس سے کیا نقصان ہوگا۔ تو میں سیدھا سا آپ کو بتاؤں کہ میں دلی وقف بورڈ کا چیئرمین وقتاً 3-4 سال رہا۔ جب میں چیئرمین تھا تو دلی وقف بورڈ میں ایک بھی کیس، ایک بھی مقدمہ نہیں ہوا، ہم نے سارے مقدمے جیتے۔ میرے وقت میں 123 پراپرٹی کا مقدمہ ہے، پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ جب ملک آزاد ہوا تھا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ 123 پراپرٹی ہے کیا۔ اس میں جب یہ انگریز تھے یہاں تو 1913 میں انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم دلی کو راجدھانی بنائیں گے۔ دلی کے جتنے گاؤں تھے تمام پراپرٹیز کو انہوں نے ایک بار 246 پراپرٹی تھی اس وقت میں، جو مسجد، قبرستان، درگاہ، مدرسے تھے۔ اس میں سے ریونیو رپورٹ نے ایک سنگل نوٹیفکیشن جاری کیا اور سارے کے پاس، اور ان سب میں سرکاری ریونیو میں سرکار جو ہے بتا گیا کسی ڈپارٹمنٹ کا نام۔ اب جب حکومت ملک آزاد ہوا، کانگریس کی حکومت آئی، 1975 میں کانگریس نے برنی کمیٹی بنائی جس میں انہوں نے سارے پیش کیے، اور اس نے سارا محسوس کیا کہ 246 پراپرٹی میں سے صرف 123 پراپرٹیاں بچی، باقی کوئی پارک میں چلی گئی، سڑک میں چلی گئی، کہ قبضہ ہو گئی ہے سرکار کی، کوئی اس پر بلڈنگ بن گئی۔ اب 123 پراپرٹی میں برنی کمیٹی کی رپورٹ آئی اور انہوں نے 1985 میں 75 سے 85 میں کانگریس حکومت نے جو اس وقت کے تھے کہ ہمیں ہماری پراپرٹی کا ہمیں فائدہ،
ایک نوٹیفिकेशन जारी किया कि 1 रुपया महीना किराए पर हमें 123 रुपया, जबकि मालिक आने वाले हफ्ते एक सिंगल नोटिफिकेशन आया, ना हमें उसका मुआवजा दिया गया, और जब उसका अपनी प्रॉपर्टी का मुआवजा देगी तो ये पूरे मुल्क में मुसलमानों ने कहा था दिल्ली में खास तौर से किराएदार हमने बना दिया। उसी नोटिफिकेशन को लेकर के विश्व हिंदू परिषद कोर्ट में गए, उसने कहा कि हम 100 रुपया किराया देने को तैयार हैं, कंपनी हमें दे देगा। तो केस चलता रहा। फिर लास्ट में आते आते 2014 में हुकूमत कांग्रेस मनमोहन सिंह जी जब थे, जब ये क्यों था, तो अगले दिन इलेक्शन हुआ था, तो आखिरी दिन उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि मुझे 1 रुपये किराएदारी की खत्म करके हम उसको मालिक में थी, तो वो नहीं लेकर आए। फिर सिंगल मेंबर कमेटी बना दी। किसी में एक खसरा नंबर 482 है, निजामुद्दीन के सामने है, डीपीएस के पीछे 30 बीघे जमीन है मामला। वो ये केस चलते हुए, स्टे चलते हुए, इन्होंने उसको गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी को अलॉट कर दिया। हम हाई कोर्ट गए, मैं नीचे और हम उनकी कमेटी में नहीं बुलाया। हमने ये कहा कि नोटिफिकेशन जारी किया कि 123 प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ इंडिया की है और वक्फ बोर्ड ने इस पर कब्जा कर रखा है और वक्फ बोर्ड इसे खाली करेगा। ये नोटिफिकेशन जारी किया इन्होंने कहीं और बिल्कुल ऐसा विवरण बना दिया। तमाम यूट्यूब चैनलों ने, तमाम चैनलों ने, तमाम अखबारों ने, तमाम नहीं गए और मेरे नाम से, वो सीओ के नाम से नोटिफिकेशन जारी होता है, वो नोटिफिकेशन मेरे नाम से जारी। मैं हाई कोर्ट गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथियों, आज जो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, आज हमारे अंदर दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम सिमोन मसीह अम्बेडकर है, राष्ट्रीय भीम संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ साथियों। और साथियों, तमाम राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है और दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहला आंदोलन साउथ दिल्ली संगम विहार से हमने ही करा था। सामाईन भी थे और उन के सामने जो अभी मुल्क में जो मौजूदा हालात है, जो हालात जो बदल रहे हैं, उनमें मुसलमान अपने आप को कहाँ खड़ा देखता है, इस मौजू पर यहाँ सेमिनार का इनाकाद किया गया। अपनी जात के लिए और अपनी मफाद के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन हमने सही मायनों में मिल्लत के लिए और अपने कौम के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो इंशाअल्लाह उसी दिन इनकलाब आ जाएगा। हम खुद अपनी कदरों में झांक लें, अपने गिरवान में झांक लें कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा देखने की और सोचने की जरूरत नहीं है। इस कुर्सी को छोड़कर जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कुर्सी कितनी देर की है और किस लिए है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो मैंने बस आखिरी लाइन सुनी वकील साहब की कि हम अल्लाह के लिए अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो मेरी किस तरफ जा रहा है, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको बयान करने से मेरी ज़बान कासिर है। सिर्फ इस शेर के साथ बताऊंगी कि न सकत है ज़ब्त गम की, न मजाल अश्क बारी। न सकत है ज़ब्त गम की, न मजाल अश्क बारी। ये अजीब कैफियत है, न सुकून न बेकरारी। इस वक्त ये हालात हैं कि ना हम रो सकते हैं, ना हम हंस सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हम कुछ कह सकते हैं। मुझे इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है कि जब आपने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसा कि भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है, तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? आपने कहा नहीं, तुम उस वक्त तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत दरिया के पानी पर उठने वाले बुलबुले की तरह होगी। तो अजीज, इनमें जिसमें वक्फ बिल को भी शामिल किया गया, उस मौजू पर भी बात हुई है। इसमें अभी पहलगाम में जिस तरह से दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उस पर भी बात हुई है, और मुल्क में और समाजी तौर से लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, इस पर भी बात की गई है। मेरा एज सच किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं यहाँ एज ए टीचर आई हूँ, और टीचर का सबसे पहला जो रोल होता है वो ये होता है कि हम अपने स्टूडेंट को समझाएं कि अपने मसले ज़रूर समझो, उसको हल करो, लेकिन बहुत तहम्मुल से हल करो, बहुत पेशेंसली उसको हैंडल करो, क्योंकि हमको आइन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने हकूक़ दे रखे हैं कि हम उन हकूक़ के अंदर ही अपनी बात कर सकते हैं और अपनी बात मनवा भी सकते हैं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया
बातों को रख सकें। और जहाँ तक हमको चाहिए कि हम जो भी हालात हैं, आज यहाँ SDPI के बैनर तले ईद मिलन का प्रोग्राम हो रहा है। इस खुशी में मैंने आवाज दी। अल्हम्दुलिल्लाह डाइस पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, और जिसमें बहुत ही खास, जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अमानत भाई बहुत कम ही लोगों के यहाँ पहुँच पाते हैं। शायद मैंने एक बार दो बार ही देखा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाजिर है और जो चीफ गेस्ट के तौर पर हैं और बड़े कीमती बातों उन्होंने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। लिहाजा मैं इस न्यूज़ बास्केट 24 जो आप लोगों को लाइव कवर भी दिखाया है और रिकॉर्डेड भी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ के जिन जिन लोगों ने अपने अपने इजहार ख़यालात किया है, उसमें सबसे अहम बात तो ये रही कि अभी मौजूदा हालात में जो पहलगाम में जिन बेकसूर 28 बेकसूर लोगों की जान बहक हुई है, उस पर लोगों ने खराज अक़ीदत भी पेश किया और उसको पूरी तरह से कंडेम भी किया। और इसके अलावा भी जो दुश्मन पड़ोसी मुल्क है उन्हें भी यहाँ से बुलंद आवाज़ में चेताया गया। न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गज़नफ़र, कैमरामैन परवेज़ हयात के साथ।